Start. Phylum Porifera, Cycon, Scypha, Spongilla, freshwater Spongia, bath sponge. Phylum Cylindrita, Phycelia, Portuguese metaphor, Adamsia, C. anemon, Penatula, C. pen, Gorgonia, C. pen, Meandrina, Brencoral, Aurelia, jellyfish, Obelia, Poem, Hydra. Phylum Tinophora, Pleurovechia, Tinoplana. Phylum Platyhelminthes, Tenia, tapeworm, Fasciola, liver fluke, planaria regeneration. Phylum Aschelminthes, Ascarius, roundworm, Ucheria, filariaworm, Anklastoma, hookworm. Phylum Annelida, Nereis, Dioecious, Peritima, earthworm, Hirudinaria, blood-sucking leech. Phylum Arthropoda, economically important insects. Apis, honeybee, bombic, silkworm, Lacifer-like insect. Vectors, Anopheles, malaria, Culex, filariasis, Culex, Japanese encephalitis. Vectors. Living fossil, Limulus king grab, gregarious pest, Locusta locust, Phylum mollusca, Pila, apple snail, Pinctada, Perloster, Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Dentalium, tuskshell, Chitopleura, Phylum Echinodermata, Ascarius, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, Silili, Cucumaria, Cumbrophora, brittle star, Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus. Phylum Chordata, subphylum Urochordata, Ascadia, Sulfa, Doliolum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus lancelet, subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzon lamprey, magazine hagfish, class Chondrichthyes, Scalidon, dogfish, Priestis, sawfish, Carcadon, great white star, Trigon, stingray, torpedo, electric lake, class Ostichthyes, marine Network issue. angelfish. Class Amphibia, Bufo, toad, Rana, frog, Hyla, tree frog, Salamandra, salamander, Ichthyophyes, limbless amphibia. Class Reptilia, Chilon, turtle, Testudo, tortoise, Calotus, garden lizard, Crocodilus, crocodile, alligator, alligator, Hemidactylus, lizard, poisonous snakes, Naja, cobra, Bungarus, crate, Vipera, viper. Class Eutes, Corvus, crow, Columba, pigeon, Psittacula, parrot, Struthio, ostrich, Aptenoids, penguin, Nephron, vulture. Class Mammalia, oviparous mammal, Ornithorhynchus, platypus, viviparous mammal, Macropus, kangaroo, Pteropus, flying fox, Camulus, camel, macaque, monkey, ratus, rat, canis, dog, Felis, cat, Elephas, elephant, Equus, horse, Belnoptera, blue whale, Panthrodactylus, tiger, Pantherleo, lion. Thank you, sir. थैंक यू बेटा हर्षल, थैंक यू सो मच. कहाँ से हो हर्षल? मोरा सर. डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, तालुका कन्नड़. कन्नड़, ओके बढ़िया. और स्कूल आपका? आर्य चाणक्य विद्याधाम, जटवाड़ा. ओके. और मीडियम? सेमी इंग्लिश सर. बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया. हर्षल खम्बट फ्रॉम कन्नड़. सो दोस्तों, we are dealing with topic AK. okay, बहुत बढ़िया, खूब भारी, छान, ग्रेट, वाव, टडक, केडीके, बढ़िया. ओके, डन डन, ठीक है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलो, now please pay attention. So we are dealing with दोस्तों टॉपिक AK, और AK में हम बात कर रहे हैं that is a chondrichthyes and osteichthyes. These are the Pisces. They belong to superclass Pisces. They belong to superclass Pisces. उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों. So कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द chondrichthyes और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द osteichthyes कि ये स्केल क्या होते हैं, ये टर्मिनल माउथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वेंट्रल माउथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हेट्रो सर्कल स्केल क्या होता है, ये होमो सर्कल कॉडल फिन क्या है, ये डिटेल में बात करेंगे. कॉन्ड्रिक्टाइस की बात करें दोस्तों, कॉन्ड्रिक्टाइस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द कॉन्ड्रिक्टाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
points about the chondric thighs, about the chondric thighs. नंबर 1 क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द chondric thighs? दोस्तों यहां पे अगर बात करेंगे तो नो डाउट इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है एंड ऑल दैट, बट दे हैव दोस्तों placoid scale on their body surface. There is a presence of placoid scale. ये यूनिक फीचर है, placoid scale, okay, on their body surface, okay, on the body surface, scales on the body surface. Number 1. Number 2, that their teeth are modification of this placoid scale. Now ये placoid scale है क्या? Actually plaques जैसे होते हैं. Now plaques क्या है? Actually the name of all this scale is based on दोस्तों their shape. So ये कुछ ऐसे दिखेंगे placoid scale. Okay, placoid scale कुछ ऐसे दिखेंगे दोस्तों. सभी सेल यहाँ पे आए हैं see this. So all these are the type of scale. Okay, so दोस्तों types of scale यहाँ पे है, ये शेप के ऊपर है. Okay, see this. So ये जो है दोस्तों दिस इज द शेप ऑफ सेल. शेप ये जो है इसे कहेंगे टीनोइड. ओआईडी का जहां पे भी शब्द आएगा ओआईडी उसका मतलब होता है उसके जैसा, लाइक दैट. सो टीनोइड एंड साइक्लॉइड. ओके, टीनोइड और साइक्लॉइड मींस सर्कुलर. दीज आर द टाइप ऑफ स्केल व्हिच आर प्रेजेंट इन दोस्तों ऑस्टिक थाइस. ये आपको पता है ऑस्टिक थाइस, याद रखो. नाउ ये जो टीनोइड है, ये जो टीनोइड शेप होता है टीनोइड, और ये दोस्तों है साइक्लॉइड. ओके, दीज आर प्रेजेंट इन दोस्तों ऑस्टिक थाइस. दीज आर प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस. किसमें है ये? ऑस्टिक थाइस जो फिशेस है इनमें है ऑस्टिक थाइस. ऑस्टिक थाइस that is cycloid and टीनोइड. साइक्लॉइड एंड टीनोइड ये ऑस्टिक थाइस में. और ये है दोस्तों प्लाकोइड स्केल. दे आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक थाइस मींस कार्टिलेजिनस स्पीशीज. एएमसीक्यू है, याद रखना पड़ेगा. प्लाकोइड स्केल ये शेप के ऊपर है. इसका मतलब क्या है? ये टीनोइड ऐसा शेप होता है. ओके, एंड साइक्लॉइड ये ऐसा शेप है, सर्कल टाइप थोड़ा सा. और ये है दोस्तों प्लाक लाइक शेप, इसे कहते हैं प्लाकोइड. कुछ ऐसे दिख रहे हैं. ओके, these are the placoid scale. These are the placoid scale. See this. These are the placoid scale. These are दोस्तों these are the टीनोइड स्केल. These are the टीनोइड स्केल. और ये है साइक्लॉइड स्केल. क्या है ये? These are the साइक्लॉइड स्केल. तो ये स्केल आपको पता होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ प्लाकोइड स्केल ऑन द बॉडी सरफेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दोस्तों दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस. और क्या फीचर है? कॉन्ड्रिक थाइस में इस उनके जो टीथ है दोस्तों दे आर मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल एंड व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. ये एमसीक्यू है. ये जो टीथ होंगे इन कॉन्ड्रिक थाइस दोस्तों बात कर रहे हैं टीथ्स इन कॉन्ड्रिक थाइस. टीथ इन कॉन्ड्रिक थाइस कैसे हैं? एमसीक्यू आता है. दे आर मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल, टीनोइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल, ये आएगा. तो दोस्तों टीथ इन कॉन्ड्रिक थाइस आर दे आर मॉडिफाइड मींस प्लाकोइड स्केल है उनमें ही कुछ चेंजेस हुए हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं. प्लाकोइड मॉडिफाइड प्लाकोइड scales and backwardly directed like this. Backwardly directed like this. Backwardly directed like this. आपने देखे होंगे कहीं तो भी. These are दोस्तों placoid scale and backwardly directed होते हैं. Backwardly
बैकवर्डली डायरेक्टेड, इसके वजह से डायरेक्टेड, इसकी वजह से ये जो है, सपोज मान लो कॉन्ड्रिक्टाइज शार्क, सो दे आर दोस्तों, उनके जो जॉ होता है वो बहुत ही हार्ड और पावरफुल जॉ होता है। इसकी वजह से जो जॉ है इनका, जॉ इन कॉन्ड्रिक्टाइज, जॉ इन कॉन्ड्रिक्टाइज, जॉ इज दोस्तों वेरी पावरफुल, जॉ इज वेरी पावरफुल, इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर उन्होंने एक बाइट ले ली जोर से तो सपोज जो भी उनके माउथ में गया है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। जॉ इज सच पावरफुल, जो आई सो दे आर प्रीडेशियस, मींस दे आर प्रीडेटर दोस्तों, ओके, दे आर प्रीडेटर्स, दे आर प्रीडेटर्स, वो प्रीडेटर्स है, प्रीडेटर्स यानी शब्द यूज किया है प्रीडेशियस, शब्द यूज किया क्या है, प्रीडेशियस। प्रीडेटर मींस एनिमल व्हिच किल्स द लिविंग प्रे एंड देन ईट। ऐसे प्रीडेटर क्या होते हैं, प्रीडेटर किसे कहेंगे, जो उनके प्रे को जिंदा ओके खाते हैं या फिर मारते हैं और खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैरासाइट कैसे है, दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट, उन्हें कहेंगे पैरासाइट। बट व्हाट आर द प्रीडेटर्स, प्रीडेटर फर्स्ट किल दैट देयर प्रे एंड देन ईट। प्रीडेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, व्हाट आर प्रीडेटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीडेटर्स आर द एनिमल्स, दीज आर द एनिमल्स फर्स्ट किल देयर प्रे एंड देन ईट। जैसे कि टाइगर है, लायन है, फर्स्ट किल्स their prey and then eat, तो that is a predator। और ये शार्क वही है दोस्तों, शार्क या फिर कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑल ऑफ देम आर प्रीडेटर। नाउ और एक इंपॉर्टेंट बात है, दे हैव दोस्तों, कॉन्ड्रिक्टाइस की बात चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द कॉन्ड्रिक्टाइस मैं कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द कॉन्ड्रिक्टाइस दोस्तों। दे हैव persistent notochord is present in chondrichthyes, ये दो ही जगह पे नोटोकॉर्ड persistent है। persistent का मतलब क्या है, persistent का दूसरा नाम क्या है, persistent होना चाहिए। आप बोलते हैं सर आपका और किसी भी और आपकी सेल्फ स्टडी या मेरी टीचिंग, ये persistent होना चाहिए। persistent मतलब क्या है, किसी ने तो कहा कांस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। persistent के लिए दूसरा शब्द है कंसिस्टेंट, दूसरा शब्द क्या है, कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट या फिर परसिस्टेंट। तो दोस्तों परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड इज कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, persistent और consistent notochord is present, notochord, ओके। शब्द कुछ ऐसा है दोस्तों, शब्द कुछ ऐसा है that notochord is persistent or consistent throughout the life, that इनमें नोटोकॉर्ड जो कॉन्ड्रिक्टाइस का, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, ओके, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। ये कहां देखा था हमने, कोई मुझे बता सकता, ये एमसीक्यू आने वाला है, अभी तक नहीं आया है पर 2021 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा। 101% एमसीक्यू। 2 एनिमल ऐसे देखे जिनमें, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया अमेश, मनीषा बहुत बढ़िया, पुष्कर, किसमें है, सेफेलोकॉर्डेट में हमने देखा। तो दोस्तों यहां से फिर से बनाएंगे एक निमोनिक्स जिसका नाम है C3, निमोनिक्स का नाम है C3, और C3 का मतलब है दोस्तों दैट इज कंसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कंसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कंसिस्टेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, consistent notochord दोस्तों present in number 1 cephalochordate, cephalochordate, और अगर एक C है तो बाकी के सब C3 हमें याद आने चाहिए, cephalochordate और दोस्तों chondrichthyes, cephalochordate और chondrichthyes, समझे। persistent और consistent notochord means it is present throughout the life, it is never getting converted into vertebral column, फिर भी इसे they are included into the vertebra, बाकी के, क्योंकि बाकी के सभी फीचर वर्टिब्रेट के हैं इसीलिए। सो कंसिस्टेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन दोस्तों, कंसिस्टेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन दूसरे 2 C है, सेफेलोकॉर्डेट और कॉन्ड्रिक्टाइस। ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है, इज दैट क्लियर।
इज दैट क्लियर? ये कुछ बातें थे, बताना बाकी है। फिर दोस्तों माउथ टर्मिनल होता है, मतलब क्या है? कॉन्ड्रिक थाइस की बात कर रहे हैं, तो मैं कॉन्ड्रिक थाइस का एक डायग्राम निकालता हूं, मान लो। ओके दो चीजें यहां पे, सपोज मान लो ये है कोई भी एक ऐसा फिश है जो है दोस्तों कार्टिलेजिनस, तो इसका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड है, दिस इज एन वेंट्रल साइड, और ये है उसके डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड। तो माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड, तो दोस्तों इसे कहते हैं दैट इज, ये माउथ है विच इज ऑन वेंट्रल साइड, तो दोस्तों ये होगा वेंट्रल माउथ। माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड, तो ये होगा वेंट्रल माउथ। दूसरी बात, पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं। नाउ दीज आर दोस्तों पेक्टोरल फिन्स जो एंटीरियर साइड पे है, दीज आर द पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स है यहाँ पे जो पीछे है, और दोस्तों जहां पे ये है काउडल फिन्स, इसे कहते हैं काउडल फिन्स, ये है काउडल फिन्स। और काउडल फिन्स कैसे है? वो है हेटेरोसर्कल। शार्क का हमेशा ये फिन्स दिखते हैं, देखो शार्क का एक काउडल फिन्स दिखता है। तो यहां पे चीजें दोस्तों ये है दैट इज हेटेरोसर्कल। हेटेरोसर्कल मींस असिमेट्रिकल, काउडल मींस टेल, काउडल फिन्स, फिन्स म्हणजे जे कल्ले आहेत ते, ठीक है, हेटेरोसर्कल काउडल फिन्स। ना दोस्तों तो यहां पे हो गया माउथ इज वेंट्रल, माउथ इज वेंट्रल, नो डाउट, माउथ इज वेंट्रल। कुछ फीचर्स में बताना चाहूंगा, माउथ इज वेंट्रल, वेंट्रल। नाउ ये है दोस्तों पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स जो हेड की तरफ होते हैं या माउथ की तरफ है, आगे वाले साइड पे, एंटीरियर साइड, पेक्टोरल फिन्स। और जो पोस्टीरियर है दोस्तों ये है पेल्विक फिन्स, एमसीक्यू, पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स। नाउ इन पेल्विक फिन्स में याद रखो एक ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन होता है। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय कॉपुलेशन? वहां पे एक ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है, आपको पता है कॉपुलेशन का मतलब क्या है? मान लो दिस इज एन ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, इसे कहते हैं दोस्तों क्लास्पर। किसी को पता है क्लास्पर? क्लास्पर। कॉपुलेशन मतलब क्या? मेटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स। कॉपुलेशन मतलब दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स, याद रखो। ओके खास करके दैट इज क्लास्पर, किसमें? इन मेल कार्टिलेजिनस फिश, क्लास्पर। एंड दिस क्लास्पर इज दोस्तों ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन मेल। क्लास्पर इज ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन मेल। और लोकेशन पूछा जाता है काउडल फिन में है, पेक्टोरल फिन में है, पेल्विक, तो देख लो कहां पे है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। These are the pelvic fins, these are the pectoral fins। माउथ कैसा है? वेंट्रल है। टेल कैसी है? हेटेरोसर्कल टेल है दोस्तों। 3 एमसीक्यू है यहाँ पे, 3 एमसीक्यू। नंबर 1 माउथ वेंट्रल, नंबर 2 टेल हेटेरोसर्कल, नंबर 3 क्लास्पर इन मेल इज प्रेजेंट इन व्हिच फिन? पेल्विक फिन्स। ओके एंड क्लास्पर क्या है दोस्तों? इट इज अ ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन मेल में पेनिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन ह्यूमन मेल, वैसे ही क्लास्पर इज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स और मेटिंग, ओके, और क्वाइटस इन कॉन्ड्रिक्टाइस मेल फिशेस। आर यू गेटिंग मी और नॉट? कैसे याद रखेंगे? नाउ प्लीज पे अटेंशन। मीनिंग समझ में आया? हेटेरोसर्कल टेल मींस क्या है दोस्तों? इसका दूसरा शब्द है एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल। ये क्या है? क्लास्पर। क्लास्पर इज दोस्तों दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। और कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। और कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन मेल, लोकेटेड इन द पेल्विक फिन्स। नाउ दोस्तों
उससे याद रखेंगे। याद रखो, डायग्राम बाद में निकाल सकते हो। निमोनिक साइज C3, फिर से निमोनिक साइज C3 क्या है? नंबर 1 दैट इज क्लास्पर, जो है क्लास्पर इन पेल्विक फिन, क्लास्पर इन पेल्विक फिन। ओके, क्लास्पर इन पेल्विक फिन इज द copulatory organ, clasper in pelvic fin is a copulatory organ in chondrichthyes fishes. MCQ in chondrichthyes male. Finish. ट्रिपल सी या C3 क्लास्पर इन लोकेशन बता दिया। क्लास्पर इन पेल्विक फिन इज अ copulatory, क्लास्पर इन पेल्विक फिन इज अ copulatory organ दोस्तों इन chondrichthyes male. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझे या नहीं? समझे या नहीं? ये C3 है बच्चों, याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू। सो दिस इज अबाउट द chondrichthyes, दिस इज अबाउट द chondrichthyes। नाउ दोस्तों, इनमें स्विम और ईयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसीलिए उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ओके, और दैट स्विम और ईयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस। नाउ आपके यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे हैं वो एक स्कॉलिडॉन है, ऊपर वाला डायग्राम, और नीचे वाला दोस्तों प्रेस्टिस सॉफिस। प्लीज सी दिस, ये क्वेश्चन में आएंगे। ऊपर वाला क्या है? स्कॉलिडॉन है, नीचे वाला क्या है? प्रेस्टिस सॉफिस है, याद रखो। ओके, शार्क, सिरिस, यह है शार्क, सिरिस। तो यहां पे आपको ये दिख भी रहा होगा दोस्तों, यहां पे आपको ये दिख भी रहा होगा। अरे किधर जा रहा है भाई? यह है शार्क, यह है शार्क। नाउ ये देखो दोस्तों, दिस इज एन हेटेरो सर्कल टेल है। ये क्या है? ये शार्क है, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क। हमेशा याद रखो, यूरियोटेलिक है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यूरिया होता है शार्क में। नाउ ये है दोस्तों, ये लंबा है, ये छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो ये है हेटेरो सर्कल, हेटेरो सर्कल टेल। क्या है दोस्तों? हेटेरो सर्कल काउडल फिन्स है। काउडल मीन्स हमेशा याद रखो टेल, काउडल फिन्स है। यहाँ पे कहीं तो भी पेल्विक फिन्स होंगे दोस्तों, वहां पे क्या है? दैट इज पेल्विक फिन्स में यहाँ यहीं पे कहीं तो भी क्लास्पर है। और ये है, यहाँ पे अगर माउथ होता तो इसे कहते हैं टर्मिनल माउथ, पर ये वेंट्रल माउथ है। एमसीक्यू, कैसा माउथ है? वेंट्रल माउथ। एटलीस्ट रिमेंबर दिस 2 पॉइंट। और ये काउडल फिन्स है, और नीचे होंगे दोस्तों दैट इज ये सॉरी पेक्टोरल फिन्स है, नीचे होंगे पेल्विक फिन्स। समझ में आया? ये है शार्क, और ऐसा होता है वेंट्रल माउथ। और ये जो आपको टीथ दिख रहे हैं दैट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, वो टीथ आर नथिंग बट द मॉडिफाइड। ओके, दोनों साइड पे है, दिस लोकेशन है वेंट्रल डॉर्सल। ओके, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल है। सो दिस इज अबाउट सम पॉइंट रिलेटेड विद द cartilaginous fishes, related with the cartilaginous fishes. Now please pay attention. Okay, see this. गिल कवर ओपरकुलम दिख रहा है आपको, या फिर और ज्यादा किधर अच्छा दिखेगा? गिल कवर ओपरकुलम, यहाँ पे और भी क्लियर है। सी दिस, सी दिस, ये ऑस्टिक थाइस है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें,
ऑस्टिक थाइस है दोस्तों ये। ओके, तो माउथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टर्मिनल माउथ है। माउथ अगर देखोगे तो क्या है दोस्तों, ऑस्टिक थाइस है ये। मान लो दिस इज ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। नाउ ये माउथ टर्मिनल है। कैसा माउथ है दोस्तों, माउथ इज टर्मिनल माउथ, एमसीक्यू, टर्मिनल माउथ है। ओके, एट द टिप है, टिप है, टर्मिनल माउथ इसे कहते हैं दोस्तों, ये है टर्मिनल माउथ है। ये टर्मिनल माउथ कैसा माउथ है, ये जो माउथ है ये है टर्मिनल माउथ, समझे, टर्मिनल माउथ है। नाउ यहां पे दोस्तों ये है ओपर्क्यूलम, ओ फॉर ऑस्टिक थाइस, ओ फॉर ओपर्क्यूलम, इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको दिस इज एन ओपर्क्यूलम, ये जो है दिस इज एन ओपर्क्यूलम, इसे कहते हैं गिल कवर्स। ये है दोस्तों दिस इज एन ओपर्क्यूलम, इसे कहते हैं गिल कवर, ये है ओपर्क्यूलम, याद रखो। नाउ ये पेक्टोरल फिन्स है, नीचे वाला पेल्विक फिन्स है दोस्तों। यहां पे अगर आप देखोगे तो सीधे नियरली इक्वल काउडल फिन्स है। तो कैसा है काउडल फिन्स, होमो सर्कल है, होमो सर्कल काउडल फिन्स है, समझे या समझे नहीं, होमो सर्कल काउडल फिन्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट, होमो, और यहाँ पे वैसा क्लास्पर वगैरह कुछ नहीं है। ये कॉस्टिक थाइस में ये बोनी फिश होते हैं दोस्तों, ये ऑस्टिक थाइस मतलब ये बोनी फिश है। आपके सिलेबस में जो दो बोनी फिश है, एक है कटला और दूसरा दोस्तों हिप्पोकैम्पस, याद रखो। ये डायग्राम हमें आने चाहिए। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए, पर डायग्राम किसका दिया है, पेट्रोमाइजोन का दिया है साइक्लोस्टोमेटा में। कॉन्ड्रिक थाइस में दो डायग्राम है, स्कॉलिडॉन, डॉगफिश, प्रेस्टिस, सॉफिश। ऑस्टिक थाइस में दो डायग्राम है, दैट इज हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, और फिर दोस्तों दूसरा है कटला। ये हमें आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर है या नहीं, यस और नो बोलो। ओके, वही डॉर्सल फिन्स, वेंट्रल फिन्स, पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, तो ये अलग अलग फिन्स होते हैं। लैटरल लाइन है दोस्तों, दिस इज एन लैटरल लाइन एंड दिस लैटरल लाइन इज मेंटेन द बैलेंस ऑफ देयर बॉडी। ये क्या है, ये लैटरल लाइन है फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी, फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी, फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी। दोस्तों ये है ऑस्टिक थाइस। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट बात यहां पे बात करेंगे दोस्तों, ये ओपर्कुलम हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात दैट इज एयर ब्लैडर, अगर डायग्राम में है, एक्चुअली वो तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, पर फिर भी दैट एयर ब्लैडर क्वेश्चन आएगा कि कौन से फिश को हमेशा तैरना पड़ता है। ओके, सो दिस ये है स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर। सी दिस डायग्राम, वाव वाव, स्विम ब्लैडर, दिस which help in maintaining buoyancy, ये स्विम ब्लैडर है दोस्तों। ओके, which help in maintaining buoyancy, buoyancy का मतलब होता है तैरना, it is in floating ability, buoyancy, ये है दोस्तों स्विम ब्लैडर। so this is a swim bladder. Okay, air bladder or swim bladder which help in maintaining buoyancy. See this, ये लेते ताकि आपको क्लियर कट मिल जाए। See this, इसका माउथ कैसा है, कैन यू टेल मी, इसका माउथ कैसा है, बाकी के फीचर कैसे हैं। See this, ये फिर से क्या है, ये है ऑस्टिक थाइस, ये है बोनी फिश, ये है ऑस्टिक थाइस बोनी फिश। ओके, ये है दोस्तों ऑस्टिक थाइस और बोनी फिश। ओके, तो डायग्राम थोड़े से ऐसे लेने पड़ेंगे मुझे, इस टाइप से। ओके, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है। अब क्लियर है। सो दोस्तों ये होगा स्विम ब्लैडर, और ये जो स्विम ब्लैडर होता है एयर ब्लैडर दे मेंटेन, दैट इज दोस्तों स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर
और दोस्तों दैट इज, दूसरा नाम है उसका ईयर ब्लैडर। किसका फीचर है? प्रेजेंट इन बोनी फिशेस। देखो टर्मिनल माउथ है, प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस, प्रेजेंट इन दोस्तों ऑस्टिक थाइस, यही तो है, प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस, प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस। एंड क्या काम करता है? मेंटेन द बॉयंसी, ये शब्द नया होगा शायद आपके लिए, मेंटेन दोस्तों, BUO, बॉयंसी मतलब फ्लोटिंग एबिलिटी, मेंटेन द बॉयंसी ऑफ फिश, तरंगण्याची कला जी आहे, फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ फिश, फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ फिश, इसे सो दे डू नॉट हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, फ्लोटिंग एबिलिटी, तो दोस्तों इसे कहते हैं बायोंसी। और ये जो है ये कौन सा है? फिर से एक बार, ये क्या है दोस्तों? ये है स्विम ब्लैडर, और इसका दूसरा नाम है ईयर ब्लैडर। ये जो आपको दिख रहा है ये स्विम ब्लैडर और ईयर ब्लैडर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये है वर्टिबल कॉलम, ओहो बोनी वर्टिबल कॉलम है, बोनी वर्टेब्रे है, ये वर्टिब्रे, बोनी वर्टिब्रे है। फिर से एक बार, ये कौन सा माउथ है? टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ किसका फीचर है? बोनी फिशेस का फीचर है। किसका फीचर है दोस्तों? ये बोनी फिश है। ये कौन सा फिश है? ये बोनी फिश है। ये कैसा फिन है? जनरली ये होमो सर्कल, थोड़ा सा दिख रहा होगा बट ये होमो सर्कल काउडल फिन है, होमो सर्कल काउडल फिन से, याद रखो होमो सर्कल काउडल फिन से। और ये है दोस्तों बोनी फिश, टर्मिनल माउथ, बोनी वर्टिब्रे मींस एंडोस्केलेटन इज बोनी, हेटेरो सर्कल काउडल फिन्स है, और दोस्तों स्विम ब्लैडर है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इसमें ईयर होता है, व्हिच कंटेन, ओके इट कंटेन दोस्तों ईयर, इट कंटेन ईयर, बताने की अलग से बात नहीं है, नाम में ही काम है। सो इट कंटेन दोस्तों, इट कंटेन्स ईयर, ईयर होगी, एंड that's why it help in maintaining the floating, it help in maintaining the buoyancy or floating ability of that fish. Is that clear? Is that clear? Okay. और ये क्या है दोस्तों? व्हाट आर दिस? दीज आर द गिल स्लिट्स। मैंने इसके पहले भी आपको गिल स्लिट्स बताए थे। गिल स्लिट्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस। जैसे कि हमारे एम्ब्रियोनिक, ऑल द वर्टिब्रेट ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज हैव गिल स्लिट्स, और pharyngeal gill slits होते हैं, there is a pair of gill slits, but in case of fishes that adult also have that gill slits. In case of दोस्तों bony fishes or ostrich thighs, they are covered by gill cover, gills cover उसे कहते हैं दोस्तों operculum, and in chondric thighs they are not covered by that gill covers, means operculum is absent in chondric thighs. Is that clear about the fishes? swim bladder contain ear लिखा है ना, उसमें ear होता है, इट कंटेन दोस्तों ईयर लिखा है, उसमें क्या होगा? ईयर। यस, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर होता तो हमारा हैबिटेट एक्वेटिक हो जाता, पानी में ही घूम रहे इधर उधर। ओके, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो ये है, पर हमारे बॉडी में ये नहीं है। ब्लैडर का मतलब होता है बैग, ब्लैडर मीन्स सैक, हमेशा याद रखो। ये जो ब्लैडर का मतलब होता है, जब भी शब्द आएगा ब्लैडर, इसका मतलब होता है दोस्तों कोई एक बैग है, बैग या फिर सैक। ब्लैडर का मतलब होता है गॉल ब्लैडर, द बैग व्हिच कंटेन दोस्तों बाइल, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, द बैग व्हिच कंटेन व्हिच इज द स्टोरेज फॉर द यूरिन, वो हो गया दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया? ब्लैडर बहुत बढ़िया, ब्लैडर ईयर ब्लैडर होते हैं दोस्तों, दैट इज इन फ्यूकस, एक अलगा है, एंड दैट आल्सो हेल्प इन स्विमिंग, और फ्लोटिंग एबिलिटी आती है उसमें। ठीक है, ईयर ब्लैडर है ना फ्यूकस में। यस 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 मनीषा, यस यू आर करेक्ट। ईयर ब्लैडर जो अलगी है फ्यूकस, दैट बिलोंग टू क्लास दोस्तों दैट इज फियोफाइसी और ब्राउन अलगी, उसके बॉडी के अंदर, बॉडी सरफेस पे भी ईयर ब्लैडर होते, पर ऐसे नहीं है वो, और दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बायोंसी और फ्लोटिंग एबिलिटी टू दैट algae. Is that clear? So this is about the fishes. ये क्लियर है? अभी कल के कुछ है आपको, कल के कुछ इश्यू है, कुछ डाउट्स है जो मैंने बोला था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। What is the concept of swim bladder? What is meant by
टर्मिनल माउथ, वेंट्रल माउथ, हेट्रोसर्कल टेल, होमोसर्कल टेल। अब क्लियर है? क्लियर दिखते बेटा उन्मेष, क्लियर दिखते हैं? हाँ, अभी कॉन्सेप्ट क्या है, मेसोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी, ये एक बाकी है। ओके, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी एक पॉइंट बाकी है, बात करेंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन। अरे यार ये कहाँ पे गया? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो, नाउ सी दिस इज एन वन ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दोस्तों। ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं नेफ्रिक डक्ट। एक हमारे आपके किसी भी, जब हम एम्ब्रियो थे तो ये स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर बना था। ओके, ये स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर हमारे बना था व्हेन वी आर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, व्हेन वी आर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ये स्ट्रक्चर बना था दोस्तों। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी? ये बहुत बच्चों को आता नहीं है और फिर वो हमेशा कंफ्यूज होता है, तो आप अभी क्लियर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी क्या होता है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो ये इसका नाम है दोस्तों नेफ्रिक डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? नेफ्रिक डक्ट है ये। और इस नेफ्रिक डक्ट के 3 पार्ट बनाए गए हैं। 3 पार्ट है। सपोज मान लो ये है अपर वाला पार्ट, ये अपर वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है दैट इज अ प्रोनेफ्रोस। ये मिडल वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है दोस्तों दैट इज मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है ये। और ये कौडल लोअर वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम या फिर मेटानेफ्रिक पार्ट। सो ये है दोस्तों, मान लो कि ये जो पार्ट है दैट इज अ प्रोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस दिया भी है उधर, प्रोनेफ्रोस, दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये है
क्या डक्ट का नाम क्या है दोस्तों? ये है नेफ्रिक डक्ट। क्या नाम है इसका? दिस इज अ नेफ्रिक डक्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेफ्रिक डक्ट है ये, नेफ्रिक डक्ट। और इस नेफ्रिक डक्ट के 3 पार्ट हैं, प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, मीजो मिडल का पार्ट है मीजोनेफ्रोज, जो हमेशा याद रखो जो ऊपर वाला पार्ट होगा किसी भी इसमें वो प्रो होता है, मिडल का मीजो, और जो टेल की तरफ होता है वो होता है मेटा। ये है दोस्तों मेटानेफ्रोज, मेटानेफ्रोज। सभी वर्टिब्रेट में, सभी फ्रॉम फारबियम फिशेस टू मैमल, ये जो प्रोनेफ्रोज पार्ट है इट इज अ डीजेनरेट, ये डीजेनरेट होता है, ये गायब हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली डीजेनरेट होता है। बचते 2 ही है, मीजोनेफ्रोज पार्ट और मेटानेफ्रोज पार्ट ऑफ दैट नेफ्रिक डक्ट। ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। नाउ जिस एनिमल में इस पार्ट से किडनी बनती है, मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी? अ किडनी व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोनेफ्रोज पार्ट ऑफ नेफ्रिक डक्ट। फिनिश। व्हाट इज मीन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी? मीजोनेफ्रिक किडनी किसे कहेंगे? मीजोनेफ्रिक किडनी का मतलब यह है a kidney which is developed from दोस्तों mesonephros part of nephric duct. Kidney which is developed from, kidney which is developed from, a kidney which is developed from दोस्तों from कहां से? mesonephros part, mesonephros part of nephric duct, mesonephros part of nephric duct, उसे कहते हैं दोस्तों that is mesonephric kidney and it is present in MCQ, it is present in, ये 360 के लिए है दोस्तों, it is present in fishes and amphibians, fishes and amphibians, याद रखो amphibians, fishes and amphibians, इसे कहते हैं mesonephric kidney. Now what is the concept of metanephric kidney? क्या होती है? What is meant by metanephric kidney? Now what is meant by metanephric kidney? इसका मतलब है ऐसी किडनी जो मेटानेफ्रोज जो पार्ट है, मेटानेफ्रोज पार्ट, ये वाला पार्ट इससे डेवलप हुई है। ओके, अगर ये पार्ट से डेवलप होती है तो वो दोस्तों हो गई मीजोनेफ्रिक। द किडनी विच इज डेवलप फ्रॉम मेटानेफ्रोज पार्ट ऑफ, कैमरा जरा इकड़े क्या बर, द किडनी विच इज डेवलप फ्रॉम मेटानेफ्रिक पार्ट, समझ में आ रहा है, ऑफ द नेफ्रिक डक्ट। ये नेफ्रिक डक्ट याद रखो, ये क्लोएका क्या है बाद में बात करूंगा, इसका भी फोकस मत करो। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस स्ट्रक्चर क्लोएका, मैं बाद में बात करने वाला हूं। फॉरगेट अबाउट दिस स्ट्रक्चर क्लोएका, ओके, इसको बाद में बात करेंगे क्लोएका के बारे में। फॉरगेट अबाउट दिस स्ट्रक्चर क्लोएका, ओके, क्योंकि ये हमेशा ये तो याद रहेगा और ये क्लोएका फिर दोस्तों प्रॉब्लम आ जाएगा आपको कि सर ये क्लोएका क्या है, क्लोएका क्या है, हमें होता है क्लोएका, क्लोएका को मैंने मिटा दिया है, क्लोएका को मैंने मिटा दिया है। सो दोस्तों बात कर रहे हैं दैट इज अ मेटानेफ्रिक किडनी, मींस किडनी व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम, बोलो व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम which part, which is developed from दोस्तों from मेटानेफ्रोज। मेटा मींस काउडल वाला पार्ट, लोअर वाला पार्ट। मेटा क्या है दोस्तों? मेटा है लोअर, मेटानेफ्रोज पार्ट ऑफ नेफ्रिक डक्ट, ऑफ नेफ्रिक डक्ट। ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी, और इट इज प्रेजेंट इन, ये भी बात है दैट मेटानेफ्रिक किडनी इट इज प्रेजेंट इन, बाकी के जो बचे हुए हैं दोस्तों दैट इज रेप्टाइल्स, ये सभी एमसीक्यू है, रेप्टाइल्स दैट इज, फिर क्या है, बर्ड्स और मैमल्स। हम में कैसी किडनी है? मेटानेफ्रिक है, समझे? we have similarity with the reptile in the type of kidney, is that clear? ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। ओके, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी ये क्लियर है, इज दैट क्लियर?
इज दॅट क्लिअर? आता कळलं? हाँ, म्हणून हे शब्दपर्यंत जाणं गरजेचं है। ये पार्ट क्या होगा दोस्तों? ये जो पार्ट था ये हो गया डीजेनरेट, ये जो पार्ट है ये डीजेनरेट होता है। दो तीन चीजें याद रखो, प्रो, मीजो और मेटा का मतलब। प्रो मतलब अपर, मीजो मतलब मिडल और मेटा मतलब लोअर, ये हमेशा याद रखो। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है दोस्तों अपर पार्ट, प्रो का मतलब होता है अपर पार्ट, मीजो का मतलब होता है मिडल पार्ट, किसी भी डक्ट का मिडल पार्ट, मीजो मतलब मीजो, और मेटा मतलब लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट। या फिर दूसरे बात, प्रो मतलब एंटीरियर, मीजो मतलब मिडल और मेटा मतलब पोस्टीरियर। सपोज मेरा हेड प्रो है तो मेरे जो लोअर लिम्ब है, ओके, ये जो मेरे सोल है ये पोस्टीरियर है, ये मेटा है, ये मेरे मेटा है। समझे? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, ये नेफ्रिक डक्ट है, नेफ्रोज मींस रिलेटेड टू किडनी, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, नेफ्रॉन। इसका दूसरा एक नाम है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वैसे नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वाह वाह वाह, किसने कहा फिल्ट्रेशन ऑर्गन? गलत। क्या नाम है? माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स गलत, किडनी ट्यूब्यूल्स गलत, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल गलत, नेफ्रॉन का क्या बात है यार, शंभो। अरे वाह, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या बात है माधव, इसका दूसरा नाम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। आएगा इसके आगे वाला जो टॉपिक है बीएफसी के बाद, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ईपीए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? अभी सब पॉइंट क्लियर हो गए? अभी किसी ने तो भी बोला सर निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में बोलो। नाउ निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन दोस्तों, कुछ हमें यहाँ पे एमसीक्यू क्या याद रखने बताओ। What are the features which are present in only fishes and amphibians? What are the features which are present only in reptile, bird or mammal? What are the common point between reptile and bird? What are common point between bird and mammal? What are common point between fishes and amphibians? What are the common point between amphibians and reptile? इसके ऊपर एमसीक्यू है। वर्टिब्रेट इतना इजी नहीं है। कॉमन पॉइंट अमंग द फार्बियम याद रखो, किसमें क्या सिमिलैरिटी है, मैं वो भी लिख के देता हूं। सो दोस्तों निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और फिर और एक है एमनियोट और एनेमनियोट्स। मैंने बोला था कि हम जब तक ये डिटेल नहीं जाएंगे ऐसे थोड़ी याद रख सकते हैं। ओके, रट्टा तो थोड़ी मारने वाले हम कि क्या होता है निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, आपको मैं समझाता हूं। और ये जो निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन लाइक दिस, that is also present in दोस्तों amphibians also, nictitating membrane in fishes, in fishes, frog में भी होता है। ओके, तो ये ऐसा कुछ मेम्ब्रेन है दोस्तों। ओके, लाइक दिस। ये क्लियर नहीं दिया है यहाँ पे क्लियर कट मेंशन नहीं है निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, पर आप यहाँ पे देख सकते हो उसने कवर किया है आइज को यहाँ पे। सो व्हाट इज निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन? दिख भी नहीं रहा है। एक निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन इज अ थिन टफ मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, that found in many species of shark, which prevent दोस्तों, it protect from the, so this यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। एक फिश है और फिश में दोस्तों ये है निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, ये है निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन which is covering, okay, which are covering दोस्तों the eyes or protect the eyes from water. So ये है दोस्तों निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन। ये एम्फीबियंस का भी फीचर है, याद रखो। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ एम्फीबियंस, दिस इज आल्सो फीचर ऑफ एम्फीबियंस दोस्तों। ये है निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज एन निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन। ओके दोस्तों, a thin and tough membrane है, a thin and tough membrane which covers the eyes, that is eyes, which covers the eyes
and also protect the eye from water. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ आईज फ्रॉम वाटर. खास करके दिस इज इन फीचर ऑफ एक्वाटिक एनिमल, फिशेस और एम्फीबियंस. समझे? ये हो गया दोस्तों निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन. दिस इज एन निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन. क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं बोलो? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ लो. ओके, समझ लो. ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते. फिर मैंने कहा कि एमनियोट्स और एनेमनियोट्स क्या है दोस्तों. ओके, आपको पता होना चाहिए अभी व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए. लास्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, तभी जाके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्या बात है यार. ओके, तो अलग अलग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते दोस्तों. ये देखो बहुत ही बढ़िया, ह्यूमन बीइंग और चिक में आए हैं, तो अलग अलग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. वाह, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करूंगा मैं, इसको ऐसे रखूंगा. नाउ मान लो दोस्तों ये है एम्ब्रियो. आपको पहले तो एम्ब्रियो देखना है. ये है दोस्तों प्लासेंटा. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये है अम्बिलिकल कॉर्ड. दिस इज एन प्लासेंटा, फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा और मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा एक्स्ट्रा. और ये है हमारा एम्ब्रियो. पहले तो हमें एम्ब्रियो देखना है. ये है हमारा एम्ब्रियो, ये वाला बच्चू दिख रहा है आपको. इसको टेल भी है छोटा सा. ये है एम्ब्रियो. ओके, दिख रहा है? यस सर. तो दोस्तों ये है एम्ब्रियो. नाउ इस एम्ब्रियो के अलग अलग मेम्ब्रेन है. चार मेम्ब्रेन है. नंबर 1 जो आपको पिंक दिख रहा है, जो पिंक कलर का दोस्तों, वो जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है, जो पिंक कलर का मेम्ब्रेन है उसका नाम है कोरियन. दिख रहा है आपको? ये है कोरियन. जो ब्लू कलर का मेम्ब्रेन है उसके अंदर दोस्तों ये है एमनियन. ये है एमनियन. फिर उसके भी अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, वो है दोस्तों दैट इज, वो जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है एलेंटॉइस. और ये जो येलो कलर का दिख रहा है दोस्तों वो है yolk sac. सो दीज आर द 4 मेम्ब्रेन. ये 4 मेम्ब्रेन है. इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब टॉपिक आएगा दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ये कैसे बनते हैं इसके ऊपर एमसीक्यू है. ये किस पार्ट से बनते हैं उसके ऊपर एम्ब्रियो पर. याबी के लिए याद रखो कोरियन, अम्नियन, एलेंटॉइस और yolk sac क्या है. ओके, रीनल सिस्टम और वो हेपेटिक रीनल पोर्टल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में भी बाकी है, वो भी बात करेंगे. नाउ ये दोस्तों एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन, अम्नियन, एलेंटॉइस और yolk sac. ये नाम तो याद रखो. क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम है नंबर 1 कोरियन. कोरियन. ओके, कोरियन. एमनियन. एमनियन. एलेंटॉइस. एलेंटॉइस. और दोस्तों एंड क्या है, कॉमन ही देना चाहिए था, एंड yolk sac. एंड yolk sac. कोई मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ एक yolk sac बता सकता है क्या? आप में से कोई मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ yolk sac बता सकता है क्या? यस और नो? क्या बात है. दिस इज देन फर्स्ट साइट ऑफ होमियोपोएसिस और इरेथ्रोपोएसिस की फर्स्ट साइट है. फर्स्ट साइट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस इन ह्यूमन बीइंग yolk sac. ऐसे ये 4 मेम्ब्रेन है दोस्तों. नाउ प्लीज पे अटेंशन. अगर ये मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उन एनिमल को कहते हैं एनएमनियोट्स, क्योंकि एन मींस एब्सेंट, एमनियन नहीं है, बाकी के भी नहीं होते हैं. तो एनएमनियोट्स मींस जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट है उन्हें कहा जाएगा दोस्तों एनएमनियोट्स. जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट है उन्हें बोला जाता है एनएमनियोट्स. याद रखो. ओके, ठीक है. एनएमनियोट्स. ओके दोस्तों, 2 टाइप के वर्टिब्रेट है. वर्टिब्रेट आर 2 टाइप्स. वर्टिब्रेट के 2 टाइप्स है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दोस्तों दीज एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एक है दोस्तों दैट इज एन मींस एब्सेंट, एनएमनियंस, एनएमनियोट्स, एनएमनियोट्स. और दोस्तों एक है दैट इज एमनियोट्स. एनएमनियोट्स और एमनियोट्स. दैट एनएमनियोट्स मींस no
extra embryonic membrane. No extra embryonic membrane. That extra embryonic, last रुकता हूं, extra embryonic membrane absent है, extra embryonic membrane absent है. And दोस्तों there is a presence of amniot, means ये चारों के चारों मेम्ब्रेन हो गए, presence of extra embryonic membrane. ये हमें जाना है डिटेल में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इतना ही डिटेल जाना है कि एमनियन और एनेमनियन का डिफरेंस क्या है. नाउ ये जो एनेमनियॉट्स है उसके एग्जांपल है दोस्तों, याद रखो, दैट इज पाइसेस म्हणजे फिशेस और एम्फीबियंस. फिशेस और एम्फीबियंस, फिशेस को हम बोलते हैं पाइसेस एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस दोनों भी एम्फीबियंस. तो दोस्तों ये है एनेमनियॉट्स. और दोस्तों यहाँ पे एमनियॉट्स में है दैट इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. कैसे याद रखेंगे? खाई के पानी बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ऐसे याद रखेंगे. पान, पान याद रखेंगे, PAAN, पान. एनेमनियॉट्स है, मतलब P फॉर, बोलो टाइम सैंपल, आई नो दैट. P फॉर दोस्तों पाइसेस, A फॉर एम्फीबियंस एंड N फॉर एनेमनियॉट्स. ओके, N बोले तो एनेमनियॉट्स, यही याद रखो. N बोले तो एनेमनियॉट्स, P बोले तो पाइसेस और ये बोले तो एम्फीबियंस. फिनिश. पान. इज दैट क्लियर? पान. बाकी है अभी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रिनल पोर्टल सिस्टम, ये आगे भी है सिलेबस में, पर फिर भी इसे कल बात करेंगे. आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं. अभी तक हमने, कल एम्फीबियंस के बारे में बात करेंगे. तो दोस्तों कल शायद लेक्चर नहीं होगा, अगर मैं रहूंगा तो यहाँ पे औरंगाबाद में तो ले लूंगा, पर मी मामा आहे त्या लग्नामधला, माझ्या भाच्याचं लग्न आहे, माझी मोठी ताई आहे त्यांच्या मुलाचं, तर मला जावं लागेल. तर समजा मी जर उद्या गेलो सकाळी, उद्या लग्न आहे, परवा लग्न आहे ते, तर आणि परभणीला आहे, मला दूर जायचं. जर उद्या गेलो सकाळी तर मग लेक्चर होणार नाही, तसं मेसेज टाका. नाही झालं तर लेक्चर कंटिन्यू आहे. ठीक आहे, संध्याकाळी तुम्हाला कळेल. ठीक आहे, चला. उद्या मोहरम पण आहे, सगळ्या तुम्हाला मोहरमच्या शुभेच्छा सर्वांना. ओके, चला. आजचं डीपीपीचा टॉपिक आहे, लक्षात ठेवा, बॉडी फ्लुइड एंड सर्क्युलेशन, BFC. ठीक है, चलो. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा, थैंक यू. उद्या तसंही मोहरमच आहे. निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन कशामध्ये, खास करून तर लक्षात ठेवा, इट इज प्रेझेंट इन फिशेस अँड एम्फिबियन्स. कोणाचं फीचर आहे निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन? फिशेस अँड एम्फिबियन्स आहे. आपल्यामध्ये आहे पण ते नॉन फंक्शनल आहे, त्यांच्यामध्ये ते फंक्शनल आहे. ओके, जस्ट वेट. बेटा आयुष, बक्कल डायवर्टिकुलम इज अनदर नेम ऑफ, ओके, स्टोमोकॉर्ड का ही दूसरा नाम है. फिर भी एक बात, ये क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको समझाता हूं. स्टोमोकॉर्ड का ही दूसरा नाम है,